In statistics, population refers to data on your study of interest. It can be a group of individuals, objects, events, organizations, etc. You use populations to draw conclusions. An example of a population would be the entire student body at a school. स्टैटिस्टिक शुमारियात में पॉपुलेशन से मुराद आपकी दिलचस्पी के मुताले से मुतल्लिक डाटा है। ये अफराद, अशिया, वाक़यात, तंजीमों वगैरह का एक ग्रुप हो सकता है। आप नताइज अख़ज़ करने के लिए पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलेशन की एक मिसाल स्कूल में पूरे तलबा की तादाद होगी। A sample data set contains a part, or a subset, of a population. The size of a sample is always less than the size of the population from which it is taken. Example, the sample may be some people living in the Pakistan. एक सैंपल डाटा सेट पॉपुलेशन का एक ज़ैली सेट हो सकता है। सैंपल का साइज हमेशा इस पॉपुलेशन के साइज से कम होता है जहां से ये लिया जाता है। मिसाल, सैंपल पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोग हो सकते हैं। Measurable observations are called quantitative observations. For example, the annual income of a family, the weight of a student, the life of an electric bulb, and the age of a child are all measurable and are, therefore, quantitative observations. काबिल पैमाइश मुशाहिदात को मिकदारी मुशाहिदात कहते हैं। मिसाल के तौर पर, एक ख़ानदान की सालाना आमदनी, एक तालिब इल्म का वज़न, एक बरकी बल्ब की ज़िंदगी और एक बच्चे की उम्र सब काबिल पैमाइश हैं, इसलिए मिकदारी मुशाहिदात हैं। The marital status of a man, the make of the car we drive, the color of a toy cannot be measured, they can only be described. Such non-measurable observations are called qualitative observations. मर्द की अज़दवाजी हैसियत, हम जो गाड़ी चलाते हैं उसकी बनावट, किसी खिलौने का रंग नहीं मापा जा सकता, वो सिर्फ बयान किया जा सकता। ऐसे गैर पैमाइशी मुशाहिदात को मेयारी मुशाहिदात कहते हैं। The values assumed by quantitative observations are called variables or variates. A variable is a measurable quantity which can assume any of a prescribed set of values. It is denoted by English capital alphabet letters. The age X of an individual, the number N of children in a family. The income Y of a worker. मिकदारी मुशाहिदात के ज़रिए फ़र्ज़ की गई कदरों को मुतग़य्यर कहा जाता है। मुतग़य्यर एक काबिल पैमाइश मक़दार है जो कदरों के किसी भी मुकर्ररा सेट को फ़र्ज़ कर, इसे अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ़ तहज्जी के हरफ से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर, एक फ़र्द की उम्र हम इसे एक्स के तौर पर फ़र्ज़ कर सकते हैं। एक ख़ानदान में बच्चों की तादाद हम इसे कैपिटल एन के तौर पर फ़र्ज़ कर सकते हैं। एक कारकुन या मज़दूर की आमदनी हम इसे Discrete variable can assume only a limited number of values on a measuring scale.
The number of students in a statistics class can be 25 or 30 but cannot be 25.3 or 25.712. A discrete variable takes on values which are usually integers or whole numbers. एक गैर मुसलसल मुतगय्यर पैमाइशी पैमाने पर कदरों की सिर्फ एक महदूद तादाद को फर्ज कर सकता है। शुमारियात की क्लास में तलबा की तादाद 25 या 30 हो सकती है, लेकिन 25.3 या 25.71 तो नहीं हो सकती। एक गैर मुसलसल मुतगय्यर कदरों को लेता है जो आम तौर पर अदद या पूरे नंबर होते हैं। If a variable can assume an infinite number of values on a measuring scale, it is called a continuous variable. For example, age of a student can be 18 or 19 years. An infinite number of values between 18 and 19 such as 18.33 or 18.183 years. अगर एक मुतगय्यर पैमाइश पैमाने पर कदरों की लामहदूद तादाद को फर्ज कर सकता है तो इसे मुसलसल मुतगय्यर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म की उम्र 18 या 19 साल हो सकती है। 18 और 19 के दरमियान कदरों या वैल्यूज की लामहदूद तादाद जैसे 18.33 या 18.183 साल वगैरह हो सकती है। A numerical record of the results of an experiment is called an observation. Suppose that we conduct an experiment to find out the average lifetime of electric light bulbs manufactured by a firm. We put a few bulbs on test and record the appropriate number for each bulb. The numerical value so recorded is called an observation. इसी तजर्बे के नताइज के अददी रिकॉर्ड को मुशाहिदा कहा जाता है। फर्ज करें कि हम किसी फर्म के तैयार करदा इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की औसत जिंदगी मालूम करने के लिए एक तजुर्बा करते हैं। हम चंद बल्बों को टेस्ट पर लगाते हैं और हर बल्ब के लिए मुनासिब नंबर रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह रिकॉर्ड की गई अददी कदरों को मुशाहिदा कहा जाता है। The originally collected numbers or observations are collectively called data. In an investigation, a statistician may himself organize the collection of data or he may use data compiled by other agencies. Data are classified as primary and in the latter case secondary. असल में जमा करदा अदाद या मुशाहिदात को इज्तमाई तौर पर डाटा कहते हैं। तहकीकात में शुमारियात दान खुद डाटा इकट्ठा करने के इंतजाम कर सकता है या वो दूसरी एजेंसियों के मुरतब करदा डाटा का इस्तेमाल कर सकता है। डाटा को बुनियादी और बाद में सानवी के तौर पर दर्जा बंद किया जाता है। Data which can be described by a continuous variable is continuous data. For example, the heights of 100 students is an example of continuous data. Data which can be described by a discrete variable is called discrete data. For example, the number of children in each of 1000 families is an example of discrete data. वो डाटा जो मुसलसल मुतगय्यर के ज़रिए बयान किया जा सकता है वो मुसलसल डाटा कहलाता है। मिसाल के तौर पर 100 तलबा की ऊंचाई मुसलसल डाटा की एक मिसाल है।
वो डाटा जिसे गैर मुसलसल मुतगय्यर के ज़रिए बयान किया जा सकता है, इसे गैर मुसलसल डाटा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हर 1000 ख़ानदानों में बच्चों की तादाद गैर मुसलसल डाटा की एक मिसाल है। Arranging data in form of table is called tabular representation of data. A table is a rectangular arrangement of data into columns and rows. The process of arranging the data in tabular form is called tabulation. Tabulation may be simple, double, triple or complex. जदूल की शक्ल में डाटा का एहतमाम करना या लिखना डाटा की टेबुलर नुमाइंदगी कहलाता है। एक टेबल कॉलमों और कितारों में डाटा का लिखने का एक तरीका एक कार है। डाटा को टेबल शक्ल में तरतीब देने के अमल को टैबुलेशन कहा जाता है। टैबुलेशन आसान, सिंपल, डबल, ट्रिपल या पेचीदा हो सकती है। By writing the raw data into the tabular form, we have distributed the data into classes or categories and determined the number of individuals belonging to each class, called the class frequency. आम अदाद-ओ-शुमार को टेबुलर शक्ल में लिखकर हम डाटा को क्लासों या ग्रुपों तक करते हैं और हर ग्रुप ताल्लुक रखने वाली कीमतों या कदरों की तादाद का तयन किया जाता है, जिसे क्लास फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। A tabular arrangement of data by classes together with the corresponding class frequencies is called a frequency distribution or frequency table. Data organized and summarized in the form of a frequency distribution are often called group data. क्लासों या ग्रोहों के जरिए अदाद-ओ-शुमार का एक टेबल के तौर पर लिखना इसी क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाकर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। ताद्दुद तक़सीम की शक्ल में मुनज़्ज़म और खलासा डाटा को अक्सर ग्रुप्ड डाटा कहा जाता है। अगर मवाद मुनज़्ज़म तरीके से और मुख्तसर तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में ज़ाहिर किया जाए तो इसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं। A symbol defining a class such as 45 to 49 is called a class interval. The numbers 45 and 49 are called class limits. The smaller number 45 is the lower class limit and the larger number 49 is the upper class limit. नीचे दी गई मिसाल में आपको एक ग्रुप 45 से 49 नजर आ रहा है। ये अलामती तौर पर डाटा या क्लास की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसको क्लास वक्फा कहा जाता है। 40 और 49 की तादाद को क्लास की हद कहते हैं। छोटी तादाद 45 निचली जमाती हद और बड़ी तादाद 49 आला जमाती हद। Actual length of a class or group, including lower class limit and upper class limit, is called class interval. For example, in group 45 to 49, class interval is 5. It is denoted by h. क्लास या ग्रुप की असल लंबाई बशमूल लोअर क्लास बाउंड्री या निचली तबकाती हद और अपर क्लास बाउंड्री या आला तबकाती हद को क्लास वक्फा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ग्रुप 45 से 49 में क्लास वक्फा 5 है। इसे आमतौर पर एच से जाहिर किया जाता है।
The real class limits of a class are called class boundaries. A class boundary is obtained by adding two successive class limits and dividing the sum by 2. The value so obtained is taken as upper class boundary for the previous class and lower class boundary for the next class. क्लास की असल जमाती हदूद को हकीकी जमाती हदूद कहते हैं। इसे हासिल करने का तरीकाकार ये है कि मुसलसल जमाती हदूद को जमा करने के बाद उसको 2 से तकसीम किया जाता है और हासिल शुदा जवाब को निचली तबकाती हद या लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस किया जाता है और ऊंची जमाती हद या आला जमाती हद जिसको अपर क्लास बाउंड्री कहते हैं में जमा करके नई हदूद हासिल की जाती हैं। इन्हें क्लास बाउंड्रीज या हकीकी जमाती हदूद कहते हैं। Class mark is the midpoint of the class and is obtained by dividing the sum of the lower and upper boundaries or limits of the class by 2. The class mark is also called the class midpoint. क्लास मार्क क्लास का वस्ती नुक्ता है और क्लास के निचले और ऊपरी हदूद के जोड़े को जमा करने के बाद 2 से तकसीम करके हासिल किया जाता है। क्लास मार्क्स को क्लास मिड पॉइंट भी कहा जाता है। The total frequency of all values less than the upper class boundary of a given class is called cumulative frequency up to and including that class. किसी दी गई जमात की आला जमाती हद से कम तमाम वैल्यू कुल तादाद को या तअद्दुद को इस जमात तक और इस क्लास तक मजमूई तअद्दुद कहा जाता है। A table showing the cumulative frequencies is called a cumulative frequency distribution, cumulative frequency table or simply a cumulative distribution. मजमूई तअद्दुद को ज़ाहिर करने वाले एक जदूल या लिस्ट या टेबल को मजमूई तअद्दुदी तक़सीम और मजमूई तअद्दुदी टेबल या महज एक मजमूई तक़सीम कहा जाता है। Data represented through diagrams, charts or graphs is called graphical representation of data. Graphs and charts are used as means of discovering regularity in the data and as a guide to further analysis. डायग्राम, चार्ट या ग्राफ के ज़रिए नुमाइंदगी करदा डाटा को अदाद-ओ-शुमार की ग्राफिकली नुमाइंदगी कहा जाता है। ग्राफ और चार्ट अदाद-ओ-शुमार में बाकायदगी को दरियाफ्त करने के ज़रिए और मज़ीद तजज़िया के लिए रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। Every graph or chart have a title which should give a clear but concise description of what it portrays. A key, a footnote or a source note should be added where necessary. A suitable scale should be used. The horizontal and vertical axes should be so marked that the graph or chart is self-explanatory. हर ग्राफ या चार्ट का एक अनुमान होता है जिसमें उसकी तस्वीर कशी की वाज़िया लेकिन जामिया तफसील देनी चाहिए।
जहाँ ज़रूरी हो वहाँ एक क्लीद, एक फुटनोट या सोर्स नोट शामिल किया जाना चाहिए। एक मुनासिब पैमाने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उफ़क़ी और अमूदी महवरों को निशानज़दा किया जाना चाहिए ताकि ग्राफ या चार्ट खुद वज़ाहती ज़ाहिर करे।